welcome Pastor George even as he comes forward to minister to us through the Word of God, and Minister Tina will be translating for him. Hallelujah. This morning we would like to share something we call Love is Not Blind. और आज जो वचन है उसका शीर्षक है कि प्रेम अंधा नहीं है। You know, many times in life we say things. Sometimes those things that we say are contrary to the Word of God. कई बार हमारे जीवन में ऐसी बातें हम बोलते हैं जो परमेश्वर के वचन के विरोध में हैं। Sometimes there are philosophies, sayings, or proverbs that we commonly say, and it's all over the place. Everybody knows it. But yet, those things are directly contrary to the Word of God. कई बार जो है ऐसी बातें हम बोलते हैं, सांसारिक ज्ञान हम बताते हैं, वहाँ की बातें कहावतें ऐसी बोलते हैं जो परमेश्वर के वचन में है ही नहीं। Let me ask us one question. एक प्रश्न मैं आपको पूछना चाहता हूँ, How many of you believe? आप में से कितने लोगों का विश्वास है? First of all, how many of you love money? How many of you love? Nobody love money here. Okay, how many of you believe money is the root of all evil? सभी बुराई की जड़ जो है पैसा है। इस If बात you really believe it, विश्वास lift है। up your hand properly. Money is the root of all evil. पैसा हर बुराई की जड़ है। You see what I'm saying? Money is not the root of all evil. पैसा The Bible says the love of money. बाइबल हमें बताती है कि जो पैसे का प्यार है वो हर दुष्टता की जड़ है। The love of money is the root of all evil, not money itself. पैसे से प्रेम रखना, उससे जो है हर बुरी बात उत्पन्न होती है, केवल पैसा बुरा नहीं है। And so in the same way, there are so many things that we say sometimes, and people say, we say, yeah, and we just go by it. और कई बार ऐसी बातें जो हैं हमारे इस दुनिया में हमारे कानों पर पड़ती है और हम उसके आधार पर आगे बढ़ते हैं, वो कहावतें सुनते हैं। In the same way, we have a reason to say, love is blind, love is blind, love is blind, love is blind. और हमें ये जो है सुनाई पड़ता है कि प्रेम अंधा है, प्रेम अंधा है, प्रेम अंधा है। And some of these things or phrases or words sound so nice, sound so good, sound so believable. और ये सब जो है बातें हमें बहुत सुहावनी लगती हैं, बहुत सुंदर लगती हैं, मन को प्रसन्न करती हैं। You have things like God helps those who help themselves. और आपने ये भी सुना होगा कि परमेश्वर उन लोगों की मदद करेगा जो खुद की मदद करते हैं। What about people who cannot help themselves? और ऐसा इंसान जो खुद की मदद कर ही नहीं सकता, उसके बारे में God doesn't care about them. इसका अर्थ ये हुआ कि परमेश्वर को उसकी If God is going to help those who help themselves. और परमेश्वर केवल अगर उन लोगों की मदद करे जो खुद की मदद पहले करते हैं, And so ये सही नहीं है। God is going to be waiting for us to help ourselves first before God steps in. परमेश्वर रुकता है क्या कि पहले हम अपनी मदद करें और फिर परमेश्वर हमारी परिस्थिति में काम करेगा। So there's so many things that we believe with philosophies that we even believe with all our heart. We even practice it. और इस संसार में बहुत सारे ऐसे ज्ञान की बातें हैं, ऐसी फिलॉसफीज हैं जिन पर हम यूं ही विश्वास कर लेते हैं जो परमेश्वर के वचन के विरोध में हैं। Those things can be wrong and even sometimes deceptive. और कई बार ये सब जो बातें हैं, ये ज्ञान की बातें जो संसार हमें सिखाता है, वो भरमाने वाली हैं, फंसाने वाली। It sounds so convincing. We are convinced about it that this is true. और हमें जो है समझ में आता है कि ये सच बात है, ये सत्य है, ये स्थापित हो गया। But most of the time, it is not true. कई बार वो सच नहीं होता। And so if something is not from the Bible, let us look at it very well. Then we might discover it is actually contrary to the Bible. और ये सब बातें जो है हमें बाइबल में खोजनी है, तभी हमें समझ आएगा कि ये परमेश्वर के वचन के विरोध में है। परमेश्वर का वचन ऐसा नहीं बोलता इन बातों के। In the same way, the word love has been distorted, disorganized, and corrupted in our age, in life. और इस युग में, इस जमाने में हम देखते हैं प्रेम, ये जो शब्द है, इसको बहुत बुरी तरह से भ्रष्ट कर दिया गया है और उसका जो अर्थ है वो निकाल दिया गया है। I've seen people, I've had testimonies of news and things like that, and a couple who say they love each other, they express so much of the word love. और हम देखते हैं कि ऐसा जोड़ा होगा, वो जो है स्त्री और पुरुष कहेंगे कि हम एक दूसरे से इतना प्रेम करते हैं, इस कदर प्यार में हैं एक दूसरे के साथ। And then when they're talking about loving each other, that they love themselves. और बोलेंगे कि हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। If you're there and you're married, you might start feeling guilty. और अगर आप विवाहित हैं और विवाह संबंध में हैं तो सहमत होंगे क्या इस बात से? Lord, give me some more love. और प्रेम दे प्रभु, ऐसा हम कहते हैं so I can love my spouse more. कि मेरे पत्नी या पति से और अधिकाई से मैं प्रेम कर पाऊं। And then suddenly, some people who were so professing about the love for one another,
और वो जोड़ा जो इस कदर एक दूसरे से प्रेम करता था, in a few months, on just 1 year, there is a separation. कुछ महीनों में, कुछ वर्षों में हम देखते हैं कि वो लोग अलग हो गए। Where has that love gone? वो प्यार कहाँ गया? What actually happened to them? क्या हुआ उनके साथ? What is the problem? और क्या समस्या है? If they love each other so much, अगर एक दूसरे से इस कदर प्रेम करते थे, what actually is greater than that love that they have for each other? और प्यार से और बढ़कर क्या था उस रिश्ते में? And so we need to understand what is reality and what is not reality. और हमें देखना है कि सच्चाई क्या है और झूठी बातें कौन सी हैं। I'm sure there are more music that sings about love than any other song in this world. और हम देखते हैं कि कितने गीत जो हैं लिखे जाते हैं प्रेम के बारे में, प्यार के बारे में आज के ज़माने में। Every musician wants to sing a song about love हर गीतकार जो है प्रेम को लेकर कोई गीत लिखना चाहता है, because you want to hear something about love. क्योंकि हमको जो है प्रेम के बारे में कुछ समझना है, And so सीखना है। everything around you go to the store. आप स्टोर में जाते You go to the store, you see love everywhere. आप देखेंगे कि प्रेम प्रेम प्यार के बारे में सब जगह लिखा होगा। I think there was a time when even jeans has love. जीन्स पर भी लव लिखा होगा And everybody wants to buy the jeans that has love. और वही जीन्स सबको खरीदनी थी जिस पे लव लिखा हो। And so it's just all over us. And so sometimes we are even confused. What is love? What is not love? और इतना प्रेम के बारे में ये दुनिया हमें सिखाती है कि हमें खुद समझ नहीं आता कि सचमुच प्रेम क्या है, झूठा प्यार क्या है। And so the question that we have is love really blind? और प्रेम जो है अंधा है, ये सीख हमें दुनिया What सिखाती है। is blindness? अंधापन है क्या? A condition of not being able to see. ऐसी अवस्था जहाँ पर आपको कुछ दिखाई नहीं पड़ता। So if you say that love is blind, which means love cannot see anything. और अगर हम कहते हैं कि प्रेम अंधा है, इसका अर्थ ये हुआ कि प्रेम को कुछ दिखाई नहीं आता। If love cannot see, अगर प्रेम देख नहीं सकता तो, if love cannot see, अगर प्रेम देख नहीं सकता तो, if love cannot see, अगर प्रेम अंधा है तो, let's assume that I am love. और समझिए कि पास्टर जो है प्रेम है, That love which is blind. वो प्रेम जो अंधा है। And so और अब I want to love this brother and sister. और ये भाई बहन है, वो प्रेम है, प्रेम करना चाहते हैं भाई बहनों से, And so because I cannot see और वो देख नहीं सकते अब, and I want to love my brother, और मेरे भाई से मैं प्रेम करना चाहता हूँ, and then I go to the podium. और पोडियम पर मैं जाता हूँ, I think podium is my brother. और मुझे लगता है कि ये जो स्टैंड है, And so I want to love the podium because I cannot see. क्योंकि मैं अंधा हूँ, मैं देख नहीं सकता, मुझे लग रहा है ये मेरा और भाई है, This love is blind. और ये प्रेम अंधा है। But if love is not blind, पर अगर प्रेम अंधा नहीं तो then I can see him फिर मैं अपने भाई को देख सकता हूँ, and then I can love him. मैं उस पर प्रेम बरसा सकता हूँ। And if love is not blind, और अगर प्रेम अंधा नहीं है, see her. मैं अपनी बहन को देख But I can love her. मैं अपनी बहन से प्रेम कर सकता हूँ, Because love is not blind. क्योंकि प्रेम अंधा नहीं है। Amen. आमेन। It's not blind. I can see them and I can love them. मैं अपने भाई बहनों को देख सकता हूँ, उनसे प्रेम रख सकता हूँ, क्योंकि मैं We'll देखता get to हूँ। that in a moment. And so we need to have the right kind of perspective of things about love. प्रेम के बारे में जो हमारा नजरिया है, जो दृष्टिकोण है, वो सही होना चाहिए। There are 4 kinds of love mentioned in the Bible. बाइबल में 4 प्रकार के प्रेम के बारे में बताया गया है, There are 3 different kinds of blindness. और 3 प्रकार के अंधेपन के बारे में बाइबल हमें बताती है। There is blindness, somebody who is born blind from birth. शारीरिक तौर पर कोई अंधा होता है जिसका जन्म हुआ और वो देख नहीं सकता, And there is partial blindness. और कोई जो है थोड़े कदर अंधे होते हैं। In other words, limited vision. इसका अर्थ कि उनकी नजर कमजोर होती है And yes, complete blindness. और पूरी तरह से अंधे होते हैं शारीरिक तौर पर। Remember in the Bible, बाइबल में आप याद कीजिए, the Apostle Paul said प्रेरित पौलुस कहता है that God will open your minds of understanding. कि परमेश्वर तुम्हारी आत्मिक समझ को, आत्मिक आंखों को खोल दे। He is not writing to believer or non-believers. He's writing to believer. अविश्वासियों से पौलुस वहां पर जो है ये बातें नहीं बता रहे, विश्वासियों को कह रहे That हैं God will take us away from blindness. कि अंधेपन से परमेश्वर हमें दूर लेकर चले। So that God doesn't want us to live in blindness. क्यों परमेश्वर नहीं चाहता कि अंधे बनकर ये विश्वासी जीवन हम जिए। Why is this subject so important? ये विषय इतना महत्वपूर्ण क्यों है? The Bible mentions 3 things that will last forever.
और बाइबल हमें 3 बातों के बारे में बताती है जो हमेशा के लिए बनी रहेंगी। 3 things that will last forever. 3 ऐसी बातें जो कभी नहीं भूलेंगी। I'm sure you've read 1 Corinthians chapter 13. पहला कुरिन्थियों 13वां अध्याय हमने पढ़ा होगा And if you read verse 13, और 13वां वचन अगर उसमें से हम talks about these 3 things that will last forever. और 3 बातों के बारे में बाइबल हमें बताती है जो हमेशा बनी रहेंगी। But it says, love is the greatest of all. प्रेम इन सब में से बड़ा है। There is faith, hope, and love. विश्वास, आशा और प्रेम ये 3 स्थायी हैं Everything else will not last forever. और बाकी कुछ जो है हमेशा के लिए बना नहीं रहेगा। Faith, hope, and love is something that will last forever. विश्वास, आशा, प्रेम जो है उसमें से प्रेम हमेशा बना रहे। In all these 3, love is the greatest. और इन सब में से जो है प्रेम सबसे बड़ा है। Amen. आमेन। In the preceding verses of 1 Corinthians chapter 13, और पहला कुरिन्थियों 13वां अध्याय अगर हम देखते हैं तो it also tells us that love is the greatest. प्रेम सबसे श्रेष्ठ है। Love is the greatest gift. बहुत बड़ा ऐसा वरदान वो है। Many times we are praying, Lord, give me this gift, give me this gift, give me this gift, give me this, give me that. और हमेशा हम परमेश्वर से मांगते हैं ये वरदान दे दे, वो वरदान दे दे प्रभु। The Bible says that love is the greatest gift. सबसे बड़ी भेंट अगर बाइबल हमें किसी के बारे में बताती है वो है प्रेम। How many times have you asked God and said, Lord, pour into your heart, into my heart, love? और कितनी बार हमारी प्रार्थना इस प्रकार से होती है कि परमेश्वर तेरा प्रेम मेरे मन में डाल दे। The Bible says that if you prophesy or you have this gift of healing, gift of faith, everything will pass away, but love will remain. बाइबल हमें बताती है आपको भविष्यवाणी करने का वरदान होगा, अन्य भाषा में आप बोलते होंगे, पवित्र आत्मा के वरदान से आप भरपूर होंगे, पर अगर आप में प्रेम नहीं तो कुछ पाप And नहीं it बन। says that love is the greatest of gifts. और हमें यहाँ पर बाइबल बता रही है प्रेम ये सबसे बड़ी बात है। If you have all these things and have no love, it says it's zero. अगर ये सब वरदान आपके पास हैं और प्रेम नहीं तो आप शून्य हो। You have everything else. सब कुछ मिल गया आपको। You have faith. आपके पास विश्वास है। You can do healing. आप चंगाई में जो You can do all kinds of things. बड़े बड़े वरदानों में आप काम कर सकते हो, But if love is lacking, पर अगर प्रेम से आप प्रेरित नहीं होते, it says it is zero. सब कुछ शून्य के बराबर है, It is nothing. कुछ भी नहीं। And so we must understand how important love is. इसीलिए हमें ये समझना है कि प्रेम कितना महत्वपूर्ण है। Love or true love is not blind, it is people who are blind. प्रेम या ये जो सच्चा प्रेम है वो अंधा नहीं, जो लोग हैं वो अंधे हैं। Maybe you may be practicing a kind of love that you have defined, not what God has defined as love. और हम जो है प्रेम की ऐसी व्याख्या रखते हैं जो हमने बनाई है, वो हमारी सोच है। परमेश्वर प्रेम की व्याख्या वैसी नहीं बताता। Maybe you've been practicing a different kind of love apart from what God wants. और परमेश्वर जिस प्रेम की अपेक्षा धरता है, आप जो है अलग प्रेम के पीछे जा रहे हो। Is love blind? क्या प्रेम अंधा है? Think about this. Is love blind? प्रेम को दिखाई नहीं आता क्या? The Bible says that God is love. बाइबल हमें बताती है परमेश्वर प्रेम है। If we say love is blind, which means God is blind. अगर हम कहते हैं कि प्रेम अंधा है, इसका मतलब क्या कि परमेश्वर अंधा है, Because God says He is love. क्योंकि परमेश्वर कह रहा है मैं प्रेम हूँ। So love is deliberate and love is an intentional act. और प्रेम क्या है? उद्देश्य पूर्वक रीति से जब हम आगे बढ़ते हैं, किसी के लिए कोई काम करते हैं। Love is deliberate act. Love is an intentional act. Something you do intentionally, deliberately. जानबूझकर हम जो है कोई कदम बढ़ाते हैं, कोई काम करते हैं, आगे बढ़ते हैं। That is why the Bible says you must have love. इसीलिए बाइबल हमें बताती है कि तुम में प्रेम होना चाहिए, Because you can only give what you have. क्योंकि आप वही दे पाएंगे जो आपके अंदर पहले से मौजूद है। And if you're blind about something, अगर किसी के बारे में आप अंधे हो तो you are probably not in a position to dispose or give that which you're blind about. और आपके पास जो बात है ही नहीं, जो वस्तु है ही नहीं, या आप अंधे हो उसको लेकर आप कैसे दूसरे को दे पाओगे? The Bible doesn't say
बाइबल हमें ऐसा नहीं बताती For God so blindly loved the world कि परमेश्वर ने इस जगत से ऐसे अंधेपन में प्रेम that की He gave His only begotten Son. कि अपने इकलौते पुत्र को दे दिया। God was not blind. परमेश्वर अंधा नहीं है He did not blindly love the world. और अंधेपन में उसने प्रेम नहीं किया इस दुनिया से। He saw us fail. उसने हमें देखा है, He saw Adam fall into sin. उसने देखा कि आदम किस प्रकार से पाप में गिरा And He had compassion. और उसका मन पूरी तरह से सहानुभूति With His own heart, He saw it. अपने आंखों से अपने मन में उसने आदम के पतन को देखा And He had compassion. और पूरी तरह से करुणा से And भर He गया came to Adam. और आदम के पास वो आए। He came to Adam and Eve. आदम और हवा से उसने भेंट ली And He clothed them with, He wrapped them around and covered them in their shame. और उनकी जो नग्नता थी उसको परमेश्वर ने ढक लिया वहां पर। And so God is not blind. Love is not blind. इसीलिए परमेश्वर हम देखते हैं कि अंधा नहीं, प्रेम अंधा नहीं है In fact, love sees beyond the normal. और प्रेम जो है सर्वसाधारण बातों से परे देखता है। Turn with me, please, to Ephesians chapter 2. इफिसियों 2 हम देखेंगे इस समय में। Ephesians chapter 2. इफिसियों 2 I'll read from verses 4 and 5. चौथा और पांचवा वचन। But because of His great love for us, God, who is rich in mercy, made us alive even when we were dead in our transgression. परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है अपने उस बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया। When we were dead in our transgression, जब हम अपराधों में थे तभी, even when we were dead in our transgression. अपने पापों में हम गिरे हुए थे तब भी। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Even when we were dead in our transgressions, हम अपने अपराधों में पड़े हुए थे He still loved us. तब भी उसने हमसे प्रेम किया। Amen? आमीन। He still loved us. हमसे उसने प्रेम किया। There was a conscious and deliberate action from God to love us. परमेश्वर ने यहाँ पर हम देखते हैं एक उद्देश्य के साथ प्रेम किया है, एक कदम बढ़ाया है जानबूझ के ये काम। Even when somebody is doing something wrong against you, और कोई आपके विरोध में कोई गलत काम करता है, even when somebody is doing something wrong against you, आपके विषय में कोई गलत काम करता है, even when you are fighting with somebody, आपका लड़ाई झगड़ा हो रहा है किसी के साथ, you have a misunderstanding with your spouse, किसी के साथ, आपके पति के साथ, पत्नी के साथ गैर समझ हो गया है, are you going to deliberately and consciously still love your spouse? जानबूझकर उद्देश्य पूर्वक रीति से क्या आप पहला कदम उठाएंगे उनसे प्रेम? In our transgression, हमारे पापों में भी God loved us. परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया। Would you still, in that situation, love your brother or your sister? आपके भाई बहनों से, रिश्तेदारों से क्या आप प्रेम करोगे उस अवस्था में? Even when we're dead in our sins. हम अपने अपराधों में मरे हुए थे। Let me ask us another question. एक दूसरा प्रश्न मैं आपको पूछना चाहता I हूँ। asked this question last week. पिछले सप्ताह मैंने ये प्रश्न पूछा था, How many of you love God? हम में से कितने लोग परमेश्वर को प्रेम करते हैं? If you love God, you're not going to do like this. परमेश्वर से प्रेम करेंगे तो हाथ ऐसा नहीं रखेंगे, You're going to do like. हाथों को ऊंचा करेंगे। Please, before you put your hand down, I want you to tell yourself, I have said today I love God. और हम अपने आप से कहेंगे मैंने आज ये दिखाया है कि मैं परमेश्वर से प्रेम कर रहा हूँ। Confession right now that I love God. मैंने अंगीकार किया है, कबूली दी है कि मैं परमेश्वर से प्रेम करता And हूँ। God is going to cause us to prove whether we truly love Him or not. और परमेश्वर जो है आपकी परीक्षा लेगा, वो सबूत चाहेगा कि क्या सचमुच हम उससे प्रेम It's करते हैं। not a matter of singing praise songs about loving God. और केवल जो है स्तुति गाना परमेश्वर की उपस्थिति में वो प्रेम दर्शाना नहीं है। Not about, declaring how much we love God. और ये बात की घोषणा करना कि कितना प्रेम हम तुझसे करते हैं, गाने गाते हैं, तेरी स्तुति करते हैं। It is a conscious and deliberate action that we show that we truly love God. और जब हम कुछ काम करते हैं उसके लिए पहला कदम उठाते हैं, उससे हम दर्शाते हैं कि हम सचमुच तुझसे प्रेम करते हैं। Turn with me, please, to 1 John in chapter 4 and in verse 20. पहला यूहन्ना 4:20 हम देखेंगे। 1 John chapter 4 and in verse 20. पहला यूहन्ना 4:20। If someone says, I love God and hates his brother, he is a liar. For he who does not love his brother whom he has seen, how can he love God whom
he has not sinned. यदि कोई कहे कि मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूँ और अपने भाई से बैर रखे तो वह झूठा है, क्योंकि जो अपने भाई से जिसे उसने देखा है प्रेम नहीं रखता तो वह परमेश्वर से भी जिसे उसने नहीं देखा प्रेम नहीं रख सकता। If someone says, I love God and hates his brother, अगर कोई ऐसा कहे कि मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूँ और अपने भाई से बैर रखता हूँ, he is a liar. वो झूठा है। Now, your brother is not just your blood brother. It's your brother in the Lord. Hey, whether your blood brother or not brother, but your neighbor, the Bible defines it. और ये जो आपके भाई बहन हैं वो आपके रिश्तेदार हो या उनके साथ खून का रिश्ता हो, ऐसा नहीं। हम प्रभु में जो हैं एक दूसरे के साथ भाई बहन हैं, हम एक दूसरे के साथ एकजुट हैं, एक परिवार हैं। The way what God used to check out whether you truly love him is how much you love your brother or your sister. और परमेश्वर का मापदंड क्या है, वो कैसे देख रहा है कि हम उससे कैसा प्रेम कर रहे हैं। अगर एक दूसरे से हम प्रेम करते हैं तो परमेश्वर कहता है फिर हम उससे प्रेम। It is not how much you sing और कितना हम पाप करते हैं उसके बारे में नहीं, about loving God. क्षमा कीजिए, कि परमेश्वर के बारे में हम इतना प्रेम करते हैं, ये हम कितना कहते हैं उसके बारे में नहीं। How much you love your brother or your sister. एक दूसरे से हम कितना प्रेम करते हैं ये उसके बारे में है। That is God's yardstick in knowing whether you really love him. और परमेश्वर का मापदंड जो है वही है, उससे ही वो आपका प्रेम उसके लिए मापता है। Amen. आमीन। Amen. And so God is going to check you out whether you truly love him. और परमेश्वर जो है ये परखेगा क्या सचमुच आप उससे प्रेम करते हैं। What? Listen, if you don't hear anything that I'm saying, then don't forget this. अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा हम जो बोल रहे हैं तो ठीक है, पर ये एक बात समझिए, What you say or what you do आप जो देखते हैं या करते हैं is very important. बहुत महत्वपूर्ण ये बात है। What you say or what you do आप जो देखते हैं या जो करते हैं leaves a signature in the realm of the spirit. आत्मिक जगत में एक छाप छोड़ रहे हैं, ये दो बातों के वजह से। What you say or what you do leaves a signature in the realm of the spirit. आप जो कहते हैं या जो आप देख रहे हैं, जो कर रहे हैं, आत्मिक जगत में एक छाप, आपका हस्ताक्षर आप छोड़ रहे हैं। When the Lord said this to me a couple of days, I was, it changed everything. और कुछ दिनों पहले जब ये प्रकाशन मुझे मिला तो सब कुछ बदल गया। What you say or what you do leaves a signature in the realm of the spirit. हम जो कहते हैं, जो करते हैं, ये सब का प्रभाव आत्मिक जगत में हो रहा है। And you cannot, wherever you sign, you cannot just rub it off. और जहाँ पर भी आपने आपका हस्ताक्षर दे दिया उसे मिटा नहीं सकते आप। When you sign a document, अगर एक हमने डॉक्यूमेंट पर साइन किया you है, cannot just rub it off. उसको मिटा नहीं सकते। You have to redo the documents आपको फिर से वो जो है दस्तावेज, वो डॉक्यूमेंट बनाना पड़ेगा। if you are not happy with the documents. अगर आपको खुशी नहीं मिली उस डॉक्यूमेंट के साथ तो You get married or something, you go to the registry, government registry or state registry and sign, I am married. आपका जब विवाह होता है, वो विवाह संबंध जो है रजिस्टर किया जाता है That documents remain there forever. और वो दस्तावेज जो है हमेशा के लिए उनके ऑफिस में रहेंगे। All truths are parallel in the realm of the spirit and also in the natural. और जो सत्य बात यहाँ पर शारीरिक दुनिया में हमें दिखती है, आत्मिक जगत भी उसी प्रकार से काम करती And so है। things that you say and things that you do, you sign in the realm of the spirit without knowing. जो भी चीजें हम बोलते हैं, करते हैं, आत्मिक जगत में उसकी छाप हम छोड़ रहे हैं। And that remains in the realm of the spirit forever. आत्मिक जगत में हमेशा के लिए वो बनी रहती हैं। Just like something remains on the internet forever. और इंटरनेट में एक बार कोई बात डालती तो हमेशा And रहेगी to इंटरनेट। change that signature you left in the realm of the spirit, और अगर वो हस्ताक्षर आपको बदलना है तो आत्मिक जगत में आपको पहुंचना पड़ेगा you need another document. और एक और डॉक्यूमेंट की आपको जरूरत You है। need another spiritual document. एक और आत्मिक डॉक्यूमेंट आपको लगेगा उसे मिटाने के लिए, Change that. उसे बदलने के लिए And जो that is टाइम why- लगेगा। And that is why we must not operate by hate. इसीलिए नफरत और घृणा अपने मन में रखकर आगे मत बढ़िए। When you do hate, you leave a signature in the realm of the spirit. जब हम एक दूसरे से नफरत रखते हैं, घृणा करते हैं, तो आत्मिक जगत में हमारी छाप हम छोड़ रहे हैं। And when you love, you also leave a signature in the realm of the spirit. जब हम प्रेम दिखाते हैं, प्रेम रखते हैं एक दूसरे के प्रति, तब भी हम एक छाप छोड़ रहे हैं And आत्मिक जगत। remember, don't forget that signature is generational. और ये मत भूलिए कि वो हस्ताक्षर जो है पीढ़ी दर पीढ़ी काम करेगा। The signature you leave in the realm of the spirit is
generational. आत्मिक जगत में जो छाप जो हस्ताक्षर आपने छोड़ा है आपके पूरे वंश में पीढ़ी में वो काम And कर affect your family for generations. आपके परिवार पर उसका प्रभाव होगा पीढ़ियों तक। And that is why it's important that we are careful the signature we leave in the realm of the spirit. इसीलिए हमें सावधानी बरतनी है, ध्यान देना है कि कौन सी छाप उस आत्मिक जगत में हम छोड़ रहे हैं। Because we cannot go back and say, oh no, I didn't really mean what I said. और आप जो हैं शायद हल्के में ले रहे होंगे इन बातों It doesn't work that because you've already been in the registry. क्योंकि रजिस्टर हो जाती हैं ये सब बातें, बहुत गंभीर ऐसी ये बातें हैं। Already registered. रजिस्टर हो गया, उसकी छाप पड़ So गई। we need to be careful about our attitude, the thing we say, the thing that we do. इसीलिए हमारे बर्ताव पर हम ध्यान दें, हम कैसा व्यवहार रखते हैं उन पर सावधानी बरत लें। When God says something, He wants to help us. He wants us to do well. और जब परमेश्वर कुछ करने के लिए हमें कहता है वो हमारी सहायता करेगा, वो चाहता है कि हम सफल हो उन बातों में। In 1 Peter chapter 4 verse 8, पहला पत्रस 4:8 हम देखेंगे। it says, above all things, इन सब बातों से बढ़कर, above all things, इन सब बातों से श्रेष्ठ have fervent love. एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो। Wow. कितनी सुंदर बात है। It says, above all things. सबसे श्रेष्ठ बात ये है, This is more important than anything else. ये सबसे महत्वपूर्ण बात हो गई, सभी बातों से अधिक And it doesn't say, have love. प्रेम रखो, केवल इतना नहीं, It says, have fervent love. बहुत अधिकाई से, पूरे लगन से एक दूसरे से प्रेम रखो। And so it's not just ordinary love. It says, have fervent love. साधारण प्रेम नहीं, पूरे मन से प्रेम करो। In other words, love that your heart is full of that love. ऐसा प्रेम जिससे आपका दिल भरपूर है। The love in your heart is not compromised by anything. आपके मन में जो प्रेम है वो कभी समझौता नहीं करता। Have fervent love for who? For God? किसके लिए हमें प्रेम करना है? परमेश्वर से। No. It says, have fervent love for one another. एक दूसरे से अधिकाई से, भरपूरी से ये प्रेम करो। Love covers a multitude of sins. प्रेम जो है बहुत सारे पापों को, सभी पापों को ढक लेता है। Above all things, the most important thing, और सबसे बड़ी बात ये होगी, love covers a multitude of sins. सभी पापों को प्रेम ढकता है, ऐसी क्षमता प्रेम रखता है। This implies that love is not blind. और इसका अर्थ क्या हुआ कि प्रेम अंधा नहीं है। If love covers a multitude of sins, अगर प्रेम में वो क्षमता है कि वो सभी पापों को ढक ले, if love is blind, अगर प्रेम अंधा होता तो, love will not see the sin. और प्रेम जो है पाप को देख नहीं So there's nothing to cover. फिर किसको ढकेगा? And if you don't cover the sin, your mind. और अगर आपने प्रेम को ढका नहीं तो आप अंधे हो। So that bitterness is in your mind because it can be covered. और क्योंकि आपके मन में वो कड़वाहट है, इसीलिए प्रेम नहीं, और आपकी Your heart that covers the multitude of sins. जब आपके मन में नफरत नहीं, प्रेम है, तो वो पाप ढक सकते हैं। Amen. 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 And so we need to have that love in our heart. इसीलिए हमारे मनों में वो प्रेम होना बहुत जरूरी है। Allow the love of God to be rich in our heart. Fill our hearts. परमेश्वर का प्रेम जो है इस कदर हमारे मनों में, हमारे हृदयों में काम करे और भर दे। In other words, love sees everything and just love says, I see what you're doing. I see what you're doing, but I let go. और प्रेम जो है सभी बातों को देखता है। मैं देख रहा हूँ तू क्या कर रहा है, मैं देख रहा हूँ तू क्या कर रहा है, I heard what you said about me yesterday, और मैंने सुना तूने क्या कहा मेरे बारे में, but I let go. पर मैं छोड़ देता उस बात को। I heard when you stabbed me from the back, और तूने जब पलटवार किया, पीछे वार किया, मैंने देखा उसको, but I let go. पर मैं छोड़ देता हूँ, रिहा करता हूँ उस बात को। Amen. Amen. That is the behavior of love. That's the character of love. प्रेम की जो गुणवत्ता है, जो व्यवहार है, वो यही है। Love can see it, प्रेम देखता है क्या हो, but it just let go. पर छोड़ देता है उन बातों You को, just let it go. छोड़ देता है, मुक्त करता है। Joy of God comes. और फिर क्या होता है? परमेश्वर का आनंद, Blessings of God come. परमेश्वर की आशीषें आती है। Nothing hinders the blessings of God. कुछ भी बाधा नहीं आती। Nothing stops the movement of God in your life. परमेश्वर का बहाव जो है आपके जीवन में उतर आता है। Because the devil wants to bring a blockage in the blessings of God in your life. शैतान क्या चाहता है कि बाधा उत्पन्न करे, रुकावट उत्पन्न करे, वो नफरत में आप अटक जाओ, आगे मत बढ़ो। And so he brings bitterness. इसीलिए कड़वाहट लाएगा आपके मन में। Amen. Amen. You know, sometimes I still need to work that God will give me more and more love every day. और मैं खुद ये प्रार्थना करता हूँ हर दिन कि परमेश्वर और अधिकाई से मुझे प्रेम से भरे। Sometimes when people do something against me,
और कभी कभी लोग जब आपके विरोध में काम करते I consciously and deliberately show them more love than I've ever shown them. और मैं क्या करता हूँ जानबूझकर उनसे जो है और अधिक प्रेम This- दिखाता हूँ This is something that I do consciously. और मैं जानबूझकर ये काम करता हूँ You can try, come and do something against me. और आकर मेरे विरोध में कुछ काम You will किया notice I love you more than ever loving you before. और मैं और अधिकाई से उस इंसान से प्रेम Because करूँ that will neutralize what the devil is trying to do. और शैतान जो करने की कोशिश कर रहा है ये प्रेम दिखाने के वजह से उसके षड्यंत्र That पर is never shame. और उसके वजह से शैतान शर्मिंदा होता है Disgraces the devil. शैतान लज्जित होता है And the devil is thinking, और शैतान सोचता है I was thinking this guy is going to get mad और मैं सोच रहा था ये तो पूरी तरह से दीवाना हो जाएगा and do something crazy. और बहुत दीवानगी में कुछ करेगा अभी And then I will step in. और फिर मैं आऊंगा उसके जिंदगी में काम करने के लिए But I don't give him that opportunity. पर उसने मुझे अवसर दिया ही नहीं वो करने के लिए आमेन Amen. आमेन So when I'm being over nice to you, be careful. और अगर पास्टर का बर्ताव बहुत अच्छा हो रहा है तो आप समझ लीजिए And so we have to allow the love of God to well up in our heart. इसीलिए परमेश्वर का प्रेम हमारे मनों में पूरी तरह से उंडेला जाए ये हमारी प्रार्थना है Is everything. सच्चा प्रेम सभी बातों को देखता है About a month ago, there is a video that I saw. और एक महीने पहले मैंने एक वीडियो देखा There's a short video that I saw छोटा सा एक वीडियो क्लिप था जो मैंने देखा about Nelson Mandela, what he's saying. नेल्सन मंडेला के बारे में ये क्लिप थी I want you to listen to that. और मैं चाहता हूँ कि हम वो सुने Nelson Mandela said, नेल्सन मंडेला ने इस प्रकार से कहा the one who loves you will never leave you, even if there is 100 reasons to give up. They will find one reason to hold on. और जो इंसान आपसे सचमुच प्रेम रखता है आपकी 100 गलतियां होने के बावजूद वो रिश्ते में बना रहेगा एक वो कारण पकड़ेगा जिसके वजह से वो रिश्ते में टिका रहे Amen. आमेन The one who loves you जो इंसान आपसे प्रेम रखता है will not leave you, वो आपको नहीं छोड़ेगा even if they have 100 reasons to leave you. उनके पास 100 कारण होंगे आपको छोड़ने के लिए तब भी They will find one reason एक कारण वो ढूंढेंगे to hold on. वो रिश्ते में बने रहने के लिए Amen. आमेन I speak directly to couples in this. और मैं इस कलीसिया पर वो बात घोषित करता हूँ आज Has the devil been giving you 1,000 reasons? और शैतान आपको 1000 कारण दे रहा होगा Everything you look on this side, you're not happy. ये तरफ देखा आप खुश नहीं हैं You look on this side, you're not happy. दूसरी तरफ देखा आप You look on that side, you're not happy. तीसरी तरफ देखा आप खुश नहीं हैं Everything your spouse touches, you don't really like it. आपके पति पत्नी जो भी आपसे कह रहे हैं आपको पसंद नहीं आता Just look for one reason to love your wife. एक कारण आप ढूंढिए आपके पति या पत्नी से प्रेम करने के लिए एक अच्छाई One reason to love your spouse and stick on and hold on to your spouse. एक अच्छाई उनमें से ढूंढिए उस कारण को पकड़े रहिए और आपके पति पत्नी के साथ वो रिश्ते को कायम रखिए Because you love them. क्योंकि आप उनसे प्रेम करते हैं Amen. आमेन Because the devil will give you 1,000,000 reasons. क्योंकि शैतान आपको सैकड़ों वहां पर कारण देगा And then he will magnify every one of them. और एक एक कारण को जो है वो बड़ा करेगा Magnify, make it look so great. और बहुत बड़ा उस बात को करेगा वो And then he said to yourself, और फिर आप अपने आप से कहते हो this is what I'm looking और यही था जो जिसके This is the reason that I'm looking for. ये कारण था जिसकी खोज में मैं था If you're looking for reasons, अगर आप कारण ढूंढ रहे हो the enemy will give you many reasons. शैतान बहुत सारे कारण आपको देगा Amen. Amen. A love is more than a feeling. और प्रेम जो है एक भावना या एहसास से बढ़कर है When some people feel something, they think that they are in love. It's not feeling. Love is not just about feeling. मुझे ऐसा महसूस हुआ इसीलिए मैं प्रेम में हूँ प्रेम ऐसा महसूस हुआ आपको इसीलिए नहीं है Amen. Amen. We must love one another हमें एक दूसरे से प्रेम रखना है because love is not a feeling. क्योंकि प्रेम एक भावना नहीं है 1 John chapter 4 verse 12 says, और पहला यूहन्ना 4:12 हम देखेंगे no one has seen God at any time. किसी ने भी परमेश्वर को नहीं देखा No one has seen God at any time. किसी ने परमेश्वर को कभी नहीं देखा If we love one another, अगर हम एक दूसरे से प्रेम रखते हैं तो God abides in us. परमेश्वर हमारे बीच में वास करता है God abides in us. परमेश्वर हमारे बीच में रहता है And his love
has been perfected in us. और उसका प्रेम हमारे बीच में सिद्ध हो गया है। We should love one another not because we're feeling something. और हम एक दूसरे से प्रेम इसीलिए रखें क्योंकि ऐसा हमें महसूस होता है। I think this been happening for generations. और बहुत सारे पीढ़ियों में हम ये होता हुआ देख रहे हैं। It's been happening for generations, probably. बहुत सारे वर्षों से ये बात होती हुई हम देख रहे हैं। You know that when people want to get married, और जब किसी को शादी करनी होती है, विवाहबद्ध होना है, they have a profile. उनके पास एक प्रोफाइल होता है Maybe their parents also have a profile. और उनके माता पिता के पास भी एक प्रोफाइल होता है। And one of the things that is never mentioned in the profile और एक बात जो कभी भी प्रोफाइल में बताई नहीं जाती is that, कि आपको अमीर होना जरूरी है, or secondly, I'm looking for a beautiful girl or handsome boy. सुंदर होना चाहिए जिस भी इंसान से मेरी शादी हो रही है। But in their heart, that is number 1 and 2 in their heart. वो प्रोफाइल में कभी लिख नहीं पर पहलू बातें होती, It is not about in their heart. पेपर में लिखाई नहीं पड़ता, पर अब उनके मन में ये इच्छा होती है। And so sometimes they have gone to see a girl, usually it's a boy who go to see a girl, right? और ज्यादातर हम देखते हैं लड़के वाले जो है लड़की वाले के पास जाएंगे। Is that correct? Boys see girls ऐसा ही होता है ना ज्यादातर। or the other way around? So when a boy goes to see a girl जब लड़का लड़की को देखने जाता है and the girl is so beautiful, और वो लड़की बहुत सुंदर है she's got blue eyes, और बहुत उसकी सुंदर आंखें हैं, नीली नीली आंखें, golden hair, और बहुत उसके अच्छे बाल हैं, and before anything is seen, he says, yes, daddy, I will marry this one. और कुछ पूछने से पहले ही हाँ कह देता है वो लड़का। And if the girl doesn't have this golden hair और अगर उस लड़की के ऐसे लंबे अच्छे बाल नहीं है तो, and doesn't have this or doesn't have that, या ये नहीं या वो नहीं, the parents have already made this. और माता पिता ने जो है निर्णय बना लिया है, अपने बच्चे को ऐसा इशारा करेंगे। And so that is something, in other words, you see and you make a decision. आपने देखा और उसके वजह से आपने निर्णय लिया। You see and you make a decision. आपको जो दिखा उसके वजह से आपने निर्णय लिया। And so where will the love play? और फिर प्रेम यहाँ पर कैसे काम करेगा? And so why do you say love is blind? और फिर हम क्यों कहते हैं कि प्रेम अंधा है? By the way, that is not love in the first place. और पहली बात तो ये प्रेम हुआ ही नहीं। And so we have to be conscious in the things that we do. We must love one another इसीलिए एक दूसरे से हम जो है प्रेम रखें, without conditions. बिना शर्त के, Without conditions. बेशर्त ऐसा प्रेम Love दूसरे is से a करें। sacrifice. और प्रेम जो है एक त्याग है, Love is a sacrifice. त्याग करना पड़ता है प्रेम में। Amen? आमीन। Love is a sacrifice. प्रेम में त्याग होना जरूरी And है, that sacrifice comes from everyone. और वो त्याग या वो बलिदान जो है हर किसी को देना है उस रिश्ते में। I will quickly look at something and then we are going to pray together. और हम एक भाग देखेंगे और फिर प्रार्थना में जाएंगे। God is love and God is not blind. परमेश्वर प्रेम है, परमेश्वर अंधा नहीं। Whenever the Lord Jesus Christ saw people suffering or going through pain, जब कभी यीशु मसीह ने देखा कि लोग जो हैं बहुत पीड़ाओं से जा रहे हैं, बहुत यातनाओं को उठा रहे the हैं, Bible says that he had compassion and then love begins to flow. उस भीड़ को देखकर यीशु जो है पूरी तरह से करुणा से, सहानुभूति से भर गए और प्रेम उन पर बरसता था। The Lord Jesus Christ spoke the parable of the Good Samaritan. और जो अच्छा सामरी व्यक्ति है, यीशु मसीह ने उसका दाखला हमें बताया है। Turn with me please to Luke chapter 10. लूका 10 हम देखेंगे इस समय में। Luke chapter 10. लूका 10, The Good Samaritan. जो अच्छा सामरी व्यक्ति था, There was somebody who was wounded by the roadside, और एक ऐसा इंसान था जिसका अपघात हो गया था, उसको चोट लगी थी, bleeding and at the point of death. रास्ते पर वो पड़ा था, पूरी तरह से उसमें से खून बह रहा था, There are people who passed by. और बहुत से लोग जा रहे थे उस रास्ते पर से। They didn't do anything. कुछ भी नहीं किया उन लोगों ने, Otherwise, he's going to die. Let him die. और लोग सोच रहे होंगे मरने पर ही है, मर जाएगा। And Luke chapter 10, I'll read from verse 25. लूका 10:25 से आगे हम देखेंगे। And behold, a certain lawyer stood up and tested him, saying, he tested the Lord Jesus Christ, Teacher, what shall I do to have eternal life? और देखो, एक व्यवस्थापक उठा और यह कहकर उसकी परीक्षा करने लगा, हे गुरु, अनंत जीवन का वारिस होने के लिए मैं क्या करूं? I really want eternal life.
I really want eternal life. मुझे अनंत काल का जीवन चाहिए I really want this or want that, and I'm praying to God, Lord, show me what to do. और मुझे ये चाहिए और मैं परमेश्वर को कह रहा हूँ कि मुझे बता मैं कैसे वो प्राप्त करूँ। Many times we are crying to God and say, show me, show me, show me. Tell me, tell me, tell me. और कई बार हम परमेश्वर को पुकारते हैं, कहते हैं मुझे दिखा प्रभु मैं क्या करूँ। Sometimes when God tells you, you're not even willing to beg God. और जब परमेश्वर जो है आपको दिखाता है तो आप परमेश्वर के प्रति आज्ञाधारी नहीं ठहरते। And so this lawyer came to the Lord Jesus Christ. और ये जो है व्यवस्थापक प्रभु के पास आते हैं He even calls him master. और उसे स्वामी कहकर बुला रहे हैं। Show me how to get eternal life. अनंत काल का जीवन मैं कैसे पाऊं स्वामी। And in verse 26, 26वां वचन। he said to him, what is written in the law? What is your rendering of it? Something is written in the book, in the Bible. How do you define or how do you explain that or how do you interpret that? उसने उससे कहा व्यवस्था में क्या लिखा है, तू कैसे पढ़ता है, तेरी समझ क्या है, मुझे समझा सकता है क्या। So he answered and said, और उसने उत्तर दिया, you shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your strength, and with all your mind, and your neighbor as you. उसने उसे उत्तर दिया, तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन, अपने सारे प्राण, अपने सारी शक्ति और अपने सारी बुद्धि से प्रेम कर और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। You shall love your neighbor as yourself. अपने समान अपने पड़ोसी से प्रेम रख। Love God with everything you have. जो कुछ भी तुझ में है तू परमेश्वर से उससे प्रेम कर। With your mind, with your heart, with your soul, with your body, everything you have. अपने सारे मन, प्राण, शरीर, बुद्धि, शक्ति से तू परमेश्वर से प्रेम कर। 28. And he said to him, 28वां वचन। you have answered rightly, and you will live. उसने उससे कहा, तूने ठीक उत्तर दिया, यह कहकर कि तू जीवित रहेगा। Listen to verse 29. 29वां वचन हम सुनेंगे। But he, the lawyer, wanting to justify himself, who is my neighbor? So this man wanted to justify him. He wanted to justify himself. Many times we try to justify what God has already stated. God had already made it clear, but we try to justify. We try to make an argument against God. और ये इंसान जो धर्मी ठहरने की इच्छा रखता है वो यीशु से पूछता है, तो मेरा पड़ोसी कौन है। जब परमेश्वर ने किसी बात को ठहरा दिया है उस पर जो है हम और सफाई देने की कोशिश करते हैं और पूछताछ करने की कोशिश। That is why even the Lord will not speak to us, because we came with a justification. और इसीलिए प्रभु आगे हमसे बात नहीं करते, क्योंकि अपनी सफाई लेकर हम परमेश्वर के सामने आते हैं। He says, who is my neighbor? वो कहता है मेरा पड़ोसी कौन है। Then Jesus answered and said, फिर यीशु ने उत्तर दिया, a certain man went down from Jerusalem to Jericho and fell among thieves, who stripped him of his clothing and wounded him and departed, leaving him half dead. यीशु ने उत्तर दिया, एक मनुष्य यरूशलेम से यरीहो को जा रहा था कि डाकुओं ने घेर कर उसके कपड़े उतार लिए और मार पीट कर उसे अधमरा छोड़कर चले गए। Now, by chance, a certain priest came down that road, and when he saw him, he was not blind, he saw him, he passed by on the other side. और ऐसा हुआ कि उसी मार्ग से एक याजक जा रहा था, परंतु उसे देखकर कतरा कर चला गया। याजक अंधा नहीं था, वो देख सकता था ये इंसान की हालत क्या है। Likewise, a Levite, when he arrived at that place, came and looked, he saw, he was not blind, and passed by the other side. इसी रीति से एक लेवी उस जगह पर आया, वह भी उसे देखकर कतरा कर चला गया। You know, many people, many believers, many people decide to be blind when they want to be blind. और ऐसे लोग जब वो अंधा अपने आप को करना चाहते हैं ना, कर लेते हैं किसी परिस्थिति को You लेकर। know, that is what the English language talks about. We say turning a blind eye to something. और जैसे कि अंग्रेजी भाषा में किसी की परिस्थिति को देखकर अनदेखा करना, अपनी आंखों को मूंद लेना। And so there was a priest that was passing by. एक याजक जा रहा था उस मार्ग से And he saw a man by the roadside who was wounded and about to die. और घायल अवस्था में ये इंसान वहां पर रास्ते के किनारे पड़ा हुआ है। And he turned a blind eye. और उसने जो है अपनी आंखों को मूंद लिया। There was no compassion.
कोई करुणा नहीं उसके मन में, No love flowing out of his life. प्रेम उसके जीवन से बाहर नहीं निकल रहा उस इंसान। Even though he was a priest. और एक याजक था वो, And he passed by the other side. और दूसरी तरफ वो जाता है, And then another person came called a Levite who works in the church. और एक और इंसान वहां पर आता है, लेवी, जो कलीसिया में काम करता है। He looked, not that he didn't see, he looked and saw the man who was about to die. उस लेवी ने देखा, ऐसा नहीं कि उसे दिखाई नहीं पड़ रहा था, देखा उस अधमरे इंसान को, And he went on his journey. और अपने सफर में आगे बढ़ गया, He went on his journey. आगे निकल गया। You know, we have to be careful that God brings something to us. It says, by chance, a Levite. It is not by chance. God allowed it to pass through that way. और कई बार हमें लगता है कि इत्तेफाक से वो इंसान जो है उस मार्ग पर आ गया, उस रास्ते पर आ गया, ऐसा नहीं। परमेश्वर ने उस इंसान को उस समय में वहां पर भेजा। If you are a child of God, अगर आप परमेश्वर की संतान है, has orchestrated things in your life. और परमेश्वर जो है ऐसे लोगों को रास्ते में बादलों पर भेजेगा। In your life. परमेश्वर ऐसे लोगों को आपके जीवन में भेज, It is not by chance, it's God who deliberately allows certain things to happen. और इत्तेफाक की ये बात नहीं, परमेश्वर ने उन लोगों को तय किए हुए समय पर आपके जीवन में भेजा है। You didn't plan to go to that city, but God made you go to that city. आपने जो है योजना नहीं बनाई थी कि मैं उस शहर में जाऊंगा, पर परमेश्वर आपको लेकर गया उस शहर में। And so God is observing everything around you. और परमेश्वर सभी बातों को देखता है, आपके इर्द गिर्द जो कुछ भी होता है। And then in verse 32 it says, but a certain Samaritan, there's a picture of the Lord Jesus Christ. 33वां वचन, As he journeyed, came where he was, and when he saw him, he had compassion. परंतु एक सामरी यात्री वहां आ निकला और उसे देखकर तरस खाया। Amen. आमीन, Amen. आमीन। When he saw him, जब सामरी व्यक्ति ने उस इंसान की हालत को other देखा, people had seen, but they didn't do anything. और दूसरे लोगों ने देखा था पर कुछ किया नहीं, But when he saw him, पर इस सामरी व्यक्ति ने जब उस इंसान की oh, it's देखा, a sign. क्योंकि प्रभु अंदर है Because he is love himself. और क्योंकि उसके अंदर As परमेश्वर love as a human being, love was there. और प्रेम काम कर रहा है वहां पर, And he could not go further. आगे नहीं जा सका वो सामरी व्यक्ति, He stopped right there. He had compassion. रुक गया और उस इंसान की हालत को देखकर उसे तरस आया And he waited there. और वहां पर रुका। And he began to administer healing to this man. और देखते हैं कि हम कैसे उसकी मलम पट्टी वो करता है। Then he also went, took the man, bandaged him, poured some ointment, bandaged him and put him to a nearby hotel. मलम पट्टी करता है, उसको मलम लगाता है और वहां पर रहने के लिए उसे स्थान पर लेकर जाता है। And told the manager, और उस स्थान के मैनेजर को pastor of the church, और जितने भी जो कलीसिया के पासबान हो रहे उसे कहता है इसको संभाल, take care of him. इसको संभालना, And he even gives some money. और पैसा तब दे देता है। That is sacrifice. वो त्याग है। Love is sacrificial. और हम देखते हैं कि प्रेम जो है बलिदान देता है। And he gave some money. He said, take care of him when I come back. और वो कहता है कि इसको संभालना, और जब मैं दोबारा आऊं, When I come back, जब मैं दोबारा आऊंगा, we'll make the final decision. और हम जो है यहाँ पर अंतिम निर्णय लेंगे। Jesus is coming back. यीशु मसीह आने वाले हैं। Amen. आमीन। To examine what you've been doing. और आप जो काम उसके लिए कर रहे हैं वो परखा जाएगा। How many dead people by the roadside you pass by? और कितने मरे हुए लोगों को देखकर हम यूं ही आगे निकल गए। And that's why we need to be conscious about every step of our life. इसीलिए हमारे जीवन में एक एक काम जो हम करते हैं उस पर ध्यान दें, Because he's coming back. क्योंकि यीशु आने वाले हैं। Amen. आमीन। I don't want to miss a chance. और मैं जो है उस मौके को नहीं गवाऊंगा। Amen. आमीन। Because all the time God is giving us opportunities and chance. और एक के बाद एक हमारे सामने मौका आता है, अवसर आते हैं। Amen. आमीन। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Love always wins. प्रेम की हमेशा जीत होती है। Amen. आमीन। Love always wins. प्रेम की जीत होती है सदैव। If you allow the love of God to dwell in your heart, और अगर परमेश्वर का प्रेम आपके मन में है, अगर आप अनुमति दे रहे हैं तो God is love. परमेश्वर प्रेम है। God always wins. परमेश्वर हमेशा विजेता है। God has never lost any battle. परमेश्वर ने कोई लड़ाई हारी नहीं। The Bible says that love never fails. परमेश्वर का वचन कहता है कि प्रेम कभी नहीं टलता, कभी नहीं हारता। Amen. Amen। I declare today that God will never fail. और मैं ये घोषणा करता हूँ कि परमेश्वर का प्रेम कभी नहीं टलेगा आपके जीवनों में से। Let's stand on our feet. आइए हम खड़े हो जाएंगे इस समय में। Hallelujah.
Thank you, Jesus. Bless you, Lord. I want you to talk to God for a moment. कुछ क्षण लेकर मैं चाहता हूँ कि हम परमेश्वर से बात करें।